تدربوا تدربوا تدربان تدربان يضربن یضربنا تدربوا تدریبان تدریبون، تدربوا تدربان تدربوا تدربان تدربون یضربون تدریبین تدریبان تدریبنا، تدربین تدربین تدربان تدربان تدربن تدربنا ادربو ندربو، اضربوا 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 نضرب ٹھیک ہے جی۔ میاں صاحب دیکھ کے سنائیں، میاں صاحب دیکھ کے پڑھیں، میاں صاحب دیکھ کے پڑھیں جی۔ یضربوا یضربان یضربون تضربوا تضربان یضربن تضربوا تضربان یضربون تضربین تدربو تضربان تدریبان تدریبون، یہاں یدربنا، تدریب تدریبان، شروع سے دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ یضربوا یضربان یضربون تضربوا تضربان یضربن شاباش۔ تضربوا تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربوا نضربوا۔ ادربو ندربو، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت خوب ہو یہ گیا۔ پہلے میرا خیال ہے وہ ہاں زبانی جو یاد کرنا غلطی ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، اب شاہد خان پڑھے گا، دیکھ کے باقی سارے اس کے پیچھے پڑھیں گے، مائک میوٹ کر کے سارے پیچھے پڑھیں گے جی۔ شاہد خان پڑھیں، یدربو یدربان، شاہد خان دیکھ کے پڑھیں اس بسم کو۔ اللہ الرحمن الرحیم یدربو یدربان یدربونا جی یدربو یدربان یدربونا یدربو، کوشش کریں تدربو تدربان یدربنا ہاں تدربو تدربان تدربونا تدربینا تدربان تدربنا ادربو ندربو، ادربو ندربو جی جی، آخر میں ادربو ندربو، اونچا پڑھیں، ادربو ندربو جی۔ پروفیسر بھائی، ادربو ندربو جی پروفیسر صاحب دیکھ کے پڑھیں، ذرا سب کو پڑھائیں جی پروفیسر صاحب۔ جی سر، ایک منٹ صرف میں ابھی اس کو بڑا کر لوں ذرا۔ جی ہاں جی سر، یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی تضربنا تدربو تدریبان یدربنا، یضربنا، ٹھیک ہے سر، سوری، ہاں یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضرب نضربو، ادربو ندربو، ہاں اضربو نضربو۔ ادربو ندربو، ٹھیک ہے۔ ابو احمد صاحب دیکھ کے اس کو ذرا پڑھیں، باقی بھائی پیچھے سے اونچا پڑھیں مائک میوٹ کر کے جی۔ ابو احمد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تدریبین تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو۔ ادربو ندربو، جس نے ابھی تک نہیں سنایا وہ اگر زبانی سنانا چاہے تو بہت اچھا، نہیں تو دیکھ کے ضرور سنا جی، جس نے ابھی حصہ نہیں ڈالا جی۔ جامی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یضربو یضربان یضربونا تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربونا تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو۔ جی، جس نے نہیں سنایا دیکھ کے سنائے جی، جس نے نہیں سنایا اگر زبانی یاد نہیں ہے تو یہ دیکھ کے سنائے تاکہ زبان پہ چڑھ جائے جی۔ جی ضیاء الحق صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان تضربنا یضربنا تدربو تدریبان یدربنا، تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو۔ ادربو ندربو، شاباش 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 جی۔ اور بھائی جس نے ابھی تک نہیں پڑھا زبانی پڑھے یا دیکھ کے پڑھے جی، ٹھیک ہے نا، کوئی زبان خالی نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں نا خطیب حضرات، کوئی زبان کیا کہتے ہیں، کوئی زبان چپ نہ رہے، زبان خاموش نہ رہے۔ ہاں جی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ساری زبانیں بولے اور جس کو زبانی آتا ہے وہ بولے، جس کو زبانی نہیں آتا وہ دیکھ کے بولے، کوئی زبان چپ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ زبان چلانی پڑے گی یہاں، آپ کو بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، بغیر بولے یہ کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے تو اپنی بیگم کو بتا دیا کہ بھائی اس کو فارمولہ یہی ہے کہ ایک زبان سے آپ نے ایک ہی سانس سے پڑھنا ہے، باقی سب بھی جن کی ہیں بیگمات وہ بتا دیں، ٹھیک ہے جی۔
کہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے آپ نے اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میاں صاحب کا ہو گیا ہے، سب سے میرے خیال میں ہمارے ہاں بزرگ ہیں تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو سارے دوست یہ کام کریں جو میاں صاحب نے کیا ہے نا ماضی کا، سارے کریں گے تو ماضی بھی اسی طرح کرنی ہے، پھر آگے مضارع بے سے کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم تھوڑا سا مضارع کو معلوماتی طور پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مضارع میں 2 معنی ہوتے ہیں۔ کل میں آج سبق جو ہے معلوماتی دے رہا ہوں آپ کو، کل جن دوستوں کی زبان پر یہ گردان نہیں چڑھی تو اس کو چڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ صرف کبیر فعل مضارع معلوم، ٹھیک ہے، یہ معلوم، ٹھیک ہے۔ یہ ماضی سے بنتا ہے، دارابا سے یہ یدریبو بنتا ہے، کس سے بنتا ہے؟ دارابا سے یدریبو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یدریبو کس سے بنتا ہے؟ دارابا سے بنتا ہے۔ یہ دارابا ہے نا، اسی سے بنتا ہے یدریبو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بنتا ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع لگاتے ہیں۔ علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، الف تا یا نون، 4 علامت مضارع ہیں، جسے ہم جو ہے اس کا جمع ہے عطین، الف تا یا نون۔ ویسے تو پہلے یا آتی ہے، پھر تا آتی ہے، پھر الف آتا ہے، پھر نون آتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عطین، الف تا یا نون، عطین، الف تا یا نون، یہ 4 علامت مضارع کی ہیں۔ ماضی کے شروع میں یہ 4 لگاتے ہیں مختلف جگہوں سے، ٹھیک ہے۔ کہاں آتی ہیں 4 یہ علامتیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پہلے عبد المجید صاحب بتائیں کہ کتنی علامت مضارع ہیں؟ عبد المجید صاحب، علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 ہیں، کون کون سی ہیں؟ یا تا الف نون، الف تا یا نون، الف تا یا نون، عطین، کیا کہیں گے اس کو؟ عطین۔ جی پروفیسر صاحب، علامت مضارع کتنی ہیں؟ جی سر 4 ہیں۔ علی عطین، اس کو ہم وہ ایک فارمولا سے بنا لیا، الف تا یا نون، الف تا یا نون، ٹھیک ہو گیا۔ جی، اب مضارع کی علامت ہے، علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت مضارع ہیں۔ اب یہ جو ہے نا عطین، الف تا، 4 علامت مضارع ہمارے پاس ہیں۔ یہ کن کن سیغوں میں آتی ہیں؟ الف جو ایک سیغے میں آتی ہے، الف کتنے سیغوں میں آتی ہے؟ ایک میں، ادربو۔ نون ایک میں آتی ہے، ندربو، بس۔ الف ایک میں آتی ہے، نون ایک میں آتی ہے، یا جو ہے یہ 4 میں آتی ہے، یدربو، یدربان، یدربون اور یدربن، ٹھیک ہو گیا۔ الف ایک میں آتا ہے، نون بھی ایک میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یا کتنے میں آتی ہے؟ 4 میں آتی ہے۔ 3 تو مذکر غائب کے نا، واحد، تثنیہ اور جمع، 3 مذکر کے ہیں اور ایک جمع مؤنث غائب کا ہے، 4 میں یہ آتا ہے۔ تو 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6، ٹھیک ہے۔ کل سیغے کتنے ہیں؟ کون بھائی بتائے گا؟ کل سیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14 جی، 14 14 میں سے آپ نے کتنے نکال لیے؟ 6 نکال لیے، باقی کتنے بچ گئے؟ 8 میں تا آتا ہے، الف میں الف ایک جگہ آتا ہے، نون ایک جگہ آتا ہے۔ الف جہاں آئے گا ادربو ہوگا، واحد متکلم ہوگا، نون آئے گا ندربو، جمع متکلم ہوگا۔ یا 4 جگہ آتا ہے شروع میں، یہ سارے شروع میں آئیں گے، یدربو، یدربان، یدربون، یہاں بھی تینوں میں آئے گی، اور یدرب جمع مؤنث غائب بھی آئے گی۔ باقی 8 کے 8 سیغے جو ہے نا، وہ ان میں وہ کیا ہے جناب علی، اس میں تا آئے گی، یہ دیکھیں آپ، سب میں تا ہے، ٹھیک ہے۔ تدریبو، تدریبان، پھر تدریبو، تدریبان، تدریبون، تدریبین، تدریبان، تدریبن، ٹھیک ہے۔ تو علامت مضارع الف ایک جگہ، نون ایک جگہ، یا جو ہے وہ 4 جگہ، اور 8 جگہ کیا آتا ہے؟ تا آتا ہے، یہ علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا مجموعہ ہے عطین۔ جب یا آ جائے گی، یدربو تو واحد مذکر غائب، یدربان تثنیہ مذکر غائب، یدربون جو مذکر غائب، تدرب واحد مؤنث غائب، تدریبان تثنیہ مؤنث غائب، یدربن جمع مؤنث غائب، یہ سیغے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تدریب واحد مذکر حاضر، تدریبان تثنیہ مذکر حاضر، تدریبون جمع مذکر حاضر، تدریبین واحد مؤنث حاضر، تدریبان تثنیہ مؤنث حاضر، تدریبن جمع مؤنث حاضر، اضربو واحد متکلم، نضربو جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر ہم یہ سیغے بتانے میں اور ان کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی
कि यदरिबु का माना ये बनेगा और तदरिबु का माना ये बनेगा, अदरिबु का ये बनेगा और नदरिबु का ही माना ये बनेगा। ठीक है, मसलन हम कुरान पाक खोल लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ क्या है, यालमु नजर आया, यालमु। तो वहाँ आपने पढ़ता यादरिबु, जो ये ना सेकंड लास्ट वाला, कभी ज़बर ज़ेर पेश तीनों आ जाएंगे इसमें, ये इसमें परेशानी आपने नहीं लेनी, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, यालमु कौन सा सीगा होगा, कोई भाई बताएगा? जी सर, सिवा वाहिद मुज़क्कर गैब फेल मुज़ारे हाँ, मालूम। मालूम। यालमु, यालमान, यालमून। अब ये ना यालमून आ गया, ये क्या आ गया, यालमून। तो इसमें या अलामत मुज़ारे है, तो पता चला यालमु यालम, ये तो ये गायब का होगा। ठीक है, अगर यालम न होता तो जमा मुअन्नस गायब होगा। 4 में यह आता है बस। ठीक है ना। अब जैसे युसिरून, या आ गया, ये क्या है जनाब, ये जमा मुज़क्कर गायब का। युलिनून, ये भी इसी तरह है। यज़ुन्नून, ये भी या जहाँ आ रही ना, यक्तुबून, कातबा यक्तुबु, यक्तुबु, यक्तुबान, यक्तुबून, ये कौन सा सीगा हो जाएगा? सर यक्तुबून, हाँ, सिगा जमा मुज़क्कर गैब जमा फेल मुज़क्कर। मुज़ारे। देखिए अब मुज़ारे की यहाँ बहुत ज़्यादा मुज़ारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे यकुलून, लियश्तरू, एक ही की लाइन में 2 मरतबा आ रहा है। ठीक है, और जैसे अच्छा कातबत कौन सा सीगा है, ये हमें मियाँ साहब बताएंगे। मियाँ साहब कातबत कौन सा सीगा है? मियाँ साहब, मियाँ साहब, कातबा, कातबा, कातबू, कातबत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं असल में नीचे गया था, बच्ची आई थी दरवाजा खोलने के लिए। अच्छा ठीक है जी, मैं पूछ रहा था कातबत कौन सा सीगा है? कातबा, कातबा, कातबू, कातबत, ये जी मुन्नस है जी, शाबाश, वाहिद वाहिद मुन्नस। मुअन्नस गायब, वेरी गुड, वाहिद मुअन्नस गायब। ठीक है, अच्छा कोई बताए यक्सिबून, कोई भाई बताएगा यक्सिबून कौन सा सीगा है? यक्सिबून नीचे है, यक्सिबून सर सिगा जमा मुज़क्कर गैब जी, से जमा मुज़क्कर गायब। यक्सिबून, कासबा यक्सिबून, तो इसकी गर्दान कैसे होगी जी? यक्सिबु, यक्सिबान, यक्सिबून, तक्सिबु, हाँ तक्सिबान, यक्सिबना, हाँ, तक्सिबु, तक्सिबान, तक्सिबूना, तक्सिबीना, तक्सिबान, तक्सिबना, अक्सिबुना, अक्सिबू नक्सिबू। आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने मुज़ारे को हल्का नहीं लेना, आपने इसको तवज्जो देनी है, और एक मतलब डट के 10-15 मिनट लगा दिए ना, ज़बान पे चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखें ना, एक एक लाइन में मतलब आ रहा है, देखें ये सारे जो है ना, ये युखलिफु, ये भी अब आ गया तकुलून, ता आ गया। अब देखना है ता जो होता है ना, वो 6 सीगों में तो वो है जहाँ हाजिर के हैं। ठीक है, 2 सीगे जो हैं वो गायब के हैं। तो तकुलून ये कौन सा सीगा होगा? ये दानिश भाई बता रहे, बाकी भी बताया करें। ठीक है, कोई और भाई बताए दानिश के अलावा, तकुलून कौन सा सीगा होगा? जी जी खुरम साहब। ये जमा हाजिर का। शाबाश, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है जी, तो असल मकसद है हमें कुरान को समझना। प्रैक्टिस भी हम कुरान से करेंगे, ताकि हम जब कुरान खोलेंगे तो हमारे जहनों से वो चीज़ें हमारे करीब होंगी, हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको मुज़ारे की अहमियत बता रहा हूँ कि मुज़ारे की याद करना कितना अहम है। इसको टाइम देना, मतलब कुरान को टाइम देना है, कुरान को समझना है आपने। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने फरफर सुनाया है, आधे दोस्तों ने सही सुनाया है, आधे दोस्तों की मज़ीद इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हमने मुज़ारे को क्या करना है, बेहतर करना है। ठीक है, इसमें जो है वो ज़्यादा कोशिश करनी है। जी बुरहान भाई। जी मुफ्ती साहब, अच्छा इसमें याद रखने के लिए, क्योंकि आपने हमें जमा मुज़क्कर सालिम की भी जैसे अलामात बताई हैं, जी जी तो वाव नून की अलामत से भी हमें मदद मिल सकती है जी। कि अब नहीं? मैं चले आपके कहने से एक और चीज़ मैं चाह रहा था, को ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन आपने कह दिया। तो इसकी जो है, इसको कोई मुश्किल नहीं है, इसके सीगे समझने के लिए। इसके सीगे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, देखें इसके जो एक वाहिद तस्निया है, क्या है। ठीक है जी, तो सब बाकी तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, लेकिन ये गिरदानों के मामले में थोड़ा ना मुझे काफी
हाँ टेंशन रहती है कि पता नहीं याद होंगी कि नहीं कैसे होंगी। नहीं 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 याद हो जाएगी। इनको सिर्फ आप टाइम दें, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। जी फेल माजी तो पढ़ा था ना हम लोगों ने पहले, जी जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फर याद हो गया, सही हो गया। हाँ, बस तो ये भी ऐसे याद हो जाएगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है। थोड़ा मुश्किल था। नहीं नहीं बड़े देखें। अच्छा, तो बुरहान भाई ने अब देखें इसके सीगे कैसे पता चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, पहले तो आपने वो याद कर लिया ना, अतैन को याद कर लिया, अलिफ ता या नून। उसके बाद देखें ना, जो 5 सीगे उसके एंड पे पेश आएगा, यदरिबू तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू, ठीक है ना, ये 5 के एंड पर पेश आएगा। वो यदरिबू पेश आ गया, समझो कि वाहिद है। तदरिबू पेश आ गया, वाहिद गायब है, यहाँ हाजिर है, ये वाहिद मुतकल्लिम है। नदरिबू जो मुतकल्लिम है। यदरिबू आखिर में क्या आ जाएगा, पेश आ जाएगी, यदरिबू पर पेश आ जाएगी, वाहिद पर। यदरिबानी, यदरिबू से क्या हो जाएगा, यदरिबानी, ये तस्निया। अलिफ नून हमने कल पढ़ा था ना, तस्निया की अलामत है। आनी हमने पढ़ा था, नहव में हमने पढ़ा था कि तस्निया मुसलमानी, मुस्लिमैनी, मुसलमानी, मुस्लिमानी और मुस्लिमैन पढ़ा। बानी अलिफ नून तस्निया की। बून यदरिबून, वाव और नून ये जमा की अलामत है। यदरिबू सिर्फ पेश हो वाहिद, बानी तस्निया, बून ये जमा हो जाएगी, बून हो जाएगा, यक्तुबून हो जाएगा, एंड पे वाव और नून आ जाएगा। फिर तदरीबू वाहिद मुअन्नस गायब, तदरीबानी तस्नीया मुअन्नस, अलिफ नून वही आगे तस्नीया मुअन्नस। यदरिबन ये जमा मुअन्नस गायब का होता है। ये क्या होता है, जमा मुअन्नस गायब की अलामत होती है यदरिबन। तदरीबू वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तदरीबानी वही तस्नीया आ गया, तदरीबून वही जमा मुज़क्कर हाजिर आ गया, तदरीबीन वाहिद मुअन्नस हाजिर, तदरीबानी वही देख अलिफ नून आ गया, तस्नीया मुअन्नस हाजिर, तदरीबना। यदरिबना याद रखना है जमा मुअन्नस गायब, और तदरीबना जमा मुअन्नस गायब, इन दोनों को याद रख लेना है बस। ये थोड़े से डिफरेंट है। बाकी अदरिबु वाहिद मुतकल्लिम, नदरिबु जमा मुतकल्लिम। ठीक है जी बुरहान भाई। जी जी हाँ जी, बिल्कुल आसानी हो गई हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। ठीक है जी, आपने इसको तवज्जो से सुनना है और याद रखना है, टाइम निकालना है। आपने भी लिख के भेजा है, काफ़ी और दोस्तों ने भी लिख के भेजा है, टाइम निकालेंगे। ठीक है ना, तो जाहिर है हर चीज़ टाइम मांगती है। ठीक है जी, तो बस ये ऐसी चीज़ें आप चलते फिरते कर लेंगे। जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिला उसको कर लिया, गाड़ी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुनगुनाते रहें इसको। ये सर्फ तो अलग से टाइम मांगती नहीं है, ये चलते फिरते गुनगुनाते रहें। यदरिबू यदरिबान यदरिबून तदरिब तदरिबान यदरिबन तदरिब तदरिबान तदरिबून तदरिबिन तदरिबान तदरिब अदरिबू नदरिबू। ये तो वैसे ही, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो चलते फिरते सिर्फ तवज्जो होनी चाहिए कि आ जाए। ये सफ़र कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगी, बस सिर्फ तवज्जो आप थोड़ी सी दें। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलासतुन नहव। ठीक है, आज का सबक बहुत अहम है। कल आपने पढ़ा था, तमरीन भी कर ली थी आपने, इसको आपने रिवाइज करना है। आज का सबक है मुरक्कब इजाफी। ठीक है जी, आज सबक, आज जो भाइयों ने कुछ भेजा था उसमें मिस्टेक्स ही कुछ मुरक्कब इजाफी की वजह से, कालमुन ज़ैदिन लिखना था, कालमुन ज़ैदुन लिखा था। तो वो इसलिए माजूर हैं कि जनाब अली उनके यहाँ मसाइल है ज़ाहिर है। ठीक है जी, कि अभी उन्होंने इसको समझा नहीं है। तो मैंने देखा आपकी जो काम आपका देखा था, तो हर एक को फिर मैंने कहा चलो यहाँ आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मुरक्कब इजाफी, जैसे काला मुँह ज़ैदिन आता है ना, वहाँ भी हम चलेंगे। तो ये आज का सबक बहुत अहम है, मुरक्कब इजाफी। ठीक, अदरस सादिस मुरक्कब इजाफी। जिस मुरक्कब नाकिस, ये मुरक्कब नाकिस होता है, यानी ताम नहीं होता, बात मुकम्मल नहीं होती। जिस मुरक्कब नाकिस में एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल। मुरक्कब इजाफी में पहले इसम को मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं, यानी रसूल मुजाफ हो जाएगा, अल्लाह ये जो इसमें जलाती है मुजाफ इलैह हो जाएगा। ठीक हो गया, रसूलुल्लाह पहले एक मुजाफ दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। कवायद, इसके क्या है आपके सामने कवायद हैं। मुजाफ पर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम आता है। जो मुजाफ होता है ना पहला, रसूल या बैतुल्लाह रसूलुल्लाह, जैसे आपने पढ़ा कालम ज़ैदिन दर्राज तो ज़ैदिन, सारे आपने सबक पढ़े पीछे। तो ये पहला जो मुजाफ होता है इस पर पेश भी, इस पर तनवीन नहीं आती। ठीक है, और ना इस पर अलिफ लाम आता है। ठीक है, अच्छा, मुजाफ पर ना तनवीन आती है और ना अलिफ लाम। मुजाफ इलैह पर ये दोनों चीज़ें आती है। जो मुजाफ इलैह होता है ना रसूलुल्लाह, इस पर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। ठीक है,
दोनों नहीं, एक यानी वालादो राजुलिन तनवीन आएगी या जेर आएगी, अलिफ लाम आएगी। जैसे वालादो राजुल आदमी का बेटा, वालादो राजुली, ठीक है, आदमी का बेटा, ठीक है। पहला कानून के मुजाफ पर तनवीन नहीं आएगी, ना अलिफ लाम आएगा, और मुजाफ इलैह पर तनवीन भी आ सकती है और जो है वो अलिफ लाम भी आ सकता है। नंबर 2, मुजाफ अगर तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो, तस्निया हो या जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो, तो उसके आखिर में नून तस्निया और नून जमा गिर जाता है। जैसे वाला दानी था ना, वाला दानी, 2 बेटे, तो अब हम इसको इजाफत करेंगे तो वो नून गिर जाएगा, वाला दा रजुल। या मुस्लिमून था ना, जमा मुज़क्कर सालिम, तो हम कहेंगे मदीने के मुसलमान, तो मुस्लिमून अल मदीनती, तो नून गिर जाएगा, मुस्लिमुल मदीनती। अगर मुजाफ तस्निया हो, राजुलानी वालदानी, मुजाफ तस्निया तो नून गिर जाएगी। जैसे वालदानी राजुल, आदमी के 2 बेटे, तो नून गिर जाएगा। और जब मुज़क्कर सालिम का सीगा हो तब भी नून गिर जाएगा। नंबर 3, मुजाफ का एराब बदलता रहता है, लेकिन मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर रहता है। जो मुजाफ पहली जो है ना, ये पहला जो मुजाफ है, इसका एराब बदलता रहता है, लेकिन मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर रहता है। जैसे जा गुलामु ज़ैदिन, जा गुलामु ज़ैदिन, ठीक है, तो यहाँ गुलामु मुजाफ है, तो ये ज़ैदिन मुजाफ इलैह, तो यहाँ हालत रफ़ी में है। रअयतु गुलाम ज़ैदिन, यह गुलाम पर ज़बर है और ज़ैदिन उस पर जारी जर है। नसर तो इला गुलामी ज़ैदिन, नज़र तो मैंने देखा, इला गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद के गुलाम की तरफ, यहाँ उस पर कसर आ गया, तो मुजाफ पर हालत बदलती रहती है। नंबर 3। नंबर 4, एक तरकीब में एक से ज़ायद भी मुजाफ और मुजाफ इलैह आ सकते हैं, एक से ज़ायद भी आ सकते हैं। कालामो वालादी ज़ैदिन, ठीक है, फ़रासो वालादे वज़ीरिल मालिकी, कालामो मुजाफ, वालादी मुजाफ इलैह, फिर मुजाफ, ज़ैद मुजाफ इलैह, ज़ैद के बेटे का कलम, कालामो वालादे ज़ैदिन। इस तरह एक तरकीब में एक से ज़ायद भी मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों आ सकते हैं। जैसे कलम मुजाफ, वालादी मुजाफ इलैह, फिर मुजाफ, ज़ैद मुजाफ इलैह, तो वालद मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर फिर बन जाएगा मुजाफ इलैह कलम मुजाफ का, कलम मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर ये खबर बन जाएगी हाजा, हाजा कालमो वालद ज़ैदिन, इनको भी निकाल सकते हैं। फ़रासो वालद वज़ीर मालिक, ठीक है, वज़ीर मालिक के बेटे का घोड़ा, ठीक है। नंबर 5, जो नकरा दूसरे नकरे की तरफ मुजाफ हो, वो नकरा मखसूसा हो जाता है, बन जाता है। जैसे कालम वालदिन, कालम भी नकरा था, वालदिन भी नकरा था, ठीक है, तो अब नकरा मखसूसा हो जाएगा कि कालम वालदिन, बेटे का कलम, कोई ख़ास कलम। और जो नकरा मारफा की तरफ मुजाफ हो तो मारफा बन जाता है। जैसे कालामु ज़ैदिन, कलम कोई भी कलम था ना, तो ज़ैद मारफा था, उसकी तरफ मुजाफ हो गया तो ये मारफा बन जाता है। नंबर 6, उर्दू में पहले मुजाफ इलैह और फिर मुजाफ आता है, जबकि अरबी में पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफ इलैह आता है। जैसे मा उन नहरी, नहर का पानी, मा मुजाफ है, अन नहर मुजाफ इलैह है, ठीक है, तो अरबी में मुजाफ पहले आता है और जो है वो मुजाफ इलैह बाद में आता है, लेकिन उर्दू में मुजाफ इलैह पहले आता है और मुजाफ बाद में आता है, नहर का पानी, ठीक है। ये कवानीन थे मुजाफ और मुजाफ इलैह के। और बिलखुसूस अभी जो अब आपको काम आने वाला कानून है वो जनाब है ये पहला कानून अभी आपको काम आएगा, फिर आगे दूसरा आएगा चलते चलते, फिर ये तीसरे की बारी आएगी, चौथे की बारी आएगी। इस वक्त आपकी ज़रूरत पहले कानून पर है कि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती, तो आप इसको क्या करना है, आपने गौर करना है। कल हमने इसकी तमरीन करनी है, इसको पढ़ के आएंगे तो हम तमरीन खुद हल कर देंगे। बेहतर है कि अगर आप तमरीन लिख के भेज भी दें तो वो ज़रा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो अब हम इसी की प्रैक्टिस हम थोड़ी सी करते हैं आपके ही सबक में, जो है वो आपका सबक इंशाअल्लाह अरबी है, उसी में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई ऐड होना चाहते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, तो हो नहीं पाता है। जी मुर्शिदा, मैंने गुजारिश की थी अगर आप इसको ओपन कर दें ताकि फिर वो आपको अलाउ नहीं करना पड़ेगा बार बार। वो किस तरह करना पड़ेगा? यहाँ पे ना आपके पास हो रहा होगा ये 3 डॉट जहाँ पे आ रहे हैं, इसके अंदर या बाद में मैं आपको बता देता हूँ, होस्ट कंट्रोल में जाके, यानी आप स्टार्ट करेंगे तो खुद ही सब ज्वाइन होते रहेंगे।
وہ پہلے کیا ہوا ہے کہ بھائی سارے خود ہی جوائن ہو جائے، لیکن بعض اوقات یہ اچھا اس کا یہ ہے مفتی صاحب، یہاں پہ نا لیفٹ سائڈ پہ وہ یلو ڈور آ جائے گا بنا ہوا، اچھا جہاں پہ ریکارڈنگ ہے نا اس کے نیچے یلو ڈور آ جائے گا، مطلب ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں وہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ اب یہ جو بعض میں ابھی ایک بھائی آ رہے ہیں تو وہ انٹر نہیں ہو پا رہا ہے، میں دبا رہا ہوں لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، تو پھر بیچ میں کلاس کے بیچ میں نا اس کی غیر حاضری نہ لگ جائے، اس لیے بس وہ کہتے ہیں چلو، لیکن یہ ہو بھی نہیں رہا۔ چلے اب پھر مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی اب زید کا قلم، تو کالم و زیدن ہم نے لکھنا کیا ہے؟ کالم و زیدن، ہاذا کالم و زیدن۔ ایک بھائی نے لکھا تھا ہاذا کالم زیدن، کیا لکھا تھا؟ ہاذا کالم زیدن، تو وہ چونکہ انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، کالم و زیدن لکھنا ہے۔ آپ کا جو آج تو ہم آگے پڑھیں گے، پچھلا جو سبق ہے آپ کا، دیکھ یہ سبق اسی پر ہے، دراجت و زیدن، دراجت مضاف ہے، زیدن مضاف ہے، زید کی سائیکل، لبن و شاتن، لبن مضاف ہے، شاتن مضاف ہے، بکری کا دودھ، نظر آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے۔ ہاں، طیارت و زیدن، طیارت مضاف، زید مضاف ہے، زید کا طیارہ۔ اب یہ مرکب ناقص ہے، یعنی بات یہ مکمل نہیں ہو رہی، تو اب شروع میں ہاذا لگا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاذا طیارت و زیدن۔ جی اس کو پڑھیں اپنا برہان بھائی، تاکہ ان میں مزید جو ہے نا ہمارے دوستوں جی میں طیارۃ زیدن جی کہ زید کا یعنی ہوائی جہاز، ہاذہ قطۃ علیم یہ علیم کی بلی ہے، ھذا طائر رفیع طائرو، یہ طائر ہاں طائر رفیع ہاں یہ رفیع کا پرندہ ہے، ہاں جی ھذہ دراجۃ سلیم یہ سلیم کی سائیکل ہے، جی تل کا صبورۃ ساجدن یہ ساجد کا تختہ سے ہے، صبورۃ ساجدن، صبورۃ ہاں ساجدن۔ یہ دیکھ تل کا ہو گیا اشارہ، تو ہاں جی صبورۃ وہ مضاف، ساجدن مضاف ہے، ٹھیک وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے۔ جی ہاں جی ذالک سور شاہدن جی وہ شاہد کا بیل ہے، بیل ہے، جی ھذا حسیر مسجدن یہ مسجد کی چٹائی ہے، یہ مسجد کی چٹائی ہے۔ چٹائی ہے۔ ہاں جی جی میاں صاحب آگے سمجھ آ رہی ہے یہ جو آج ہم نے نحو میں پڑھا، مضاف مضاف الیہ سبق؟ جی جی میاں صاحب، جی 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 الحمدللہ جی، ہاں یہ آپ کو بار بار کیا آئے گا؟ کام آئے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تھوڑا سا ہم نے دیکھ لیا اس کو، تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب کل ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں ایک اور بھائی نے بھی ہمیں بھیجا ہے، انہوں نے جی ابھی برہان بھائی آپ پڑھیں نا، میں جو اس میں کمی ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دو بھائی جی کی اس میں اصلاح کرنی تھی۔ اردو سے عربی پڑھوں؟ جی جی اردو سے ہاں عربی۔ جی، بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، یقرأ طفل فی کتابہ ہاں لیکن اس کو جو وسیع ہے نا، جو بہتر وہ ہے الطفلو، الطفل، اچھا الطفلو یقرأ فی کتابہ، کیا پڑھیں گے؟ یقرأ، ایسا یعنی شروع سے الطفل سے شروع کروں؟ ہاں الطفلو سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، میں اس الطفل کو اپنے یقرأ پاس صحیح فی کروں۔ کتابہ، بچہ اپنی ٹھیک کتاب میں پڑھتا ہے۔ جی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تم اپنی کتاب میں پڑھو، ہاں اقرا فی ہاں کتابک، نہیں ہاں جی انت تقرأ، اچھا انت آ جائے گا شروع میں، نہیں بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات، اقرا فی کتابک، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اقرا، پھر ہاں اقرا فی کتابک، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب تیسرے نمبر پہ ہے میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، اقرأ ہاں فی کتابی، فی کتابی، ٹھیک ہے، اقرأ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں، ہاں اقرأ فی کتابک، ہاں اگر اس کے شروع میں انا ڈال دینا تو ذرا اچھا ٹھیک ہے، اچھا رہے گا، انا اقرأ، ہاں جی، ٹھیک فی انا اقرأ فی کتابک، میں تمہاری کتاب پڑھتا ہوں۔ جی آگے جی دانش بھائی، آگے پڑھیں آپ، دانش بھائی۔ میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، انا اقرأ فی کتابہ، شاباش، میں اس کی کتاب، انا وہ اقرأ میری فی کتابی، جی
जो जिन जी भाइयों ने लिखा है भेजा है ना, वो अपनी ज़रा इस्लाह फरमा लें ताकि फिर जो है ना वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी जी। अस्तगफुरुल्लाह। वो मेरी किताब में पढ़ता है। यहाँ काफी दोस्तों ने मिस्टेक हुआ की थी जरा। हाँ, हुआ वो हुआ हुआ यकराओ अकराउ यकराओ किताबी। हुआ यकराओ जी फी हुआ किताब यकराउ फी किताबी। भी। हाँ, हुआ यकराओ फी किताबी, वो मेरी किताब में पढ़ता है। ठीक हो गया जी। क्या वो तुम्हारी किताब में पढ़ता है? हम्म हल हल हुआ हम्म हल हुआ अकराउ फी किताबी का। हल हुआ यकराऊ, हल हुआ यकराऊ फी वो किताबी का। जी हल हुआ, क्या जी वो आपकी किताबें पढ़ता है? जी जी हाँ, वो मेरी किताब में पढ़ता है। नाम हाँ, हुआ यकराउ फी किताबी। शाबाश, ठीक हो गया। आगे पढ़े मुबशर भाई, मुबशर भाई आगे पढ़े। जी क्या क्या तुम उसकी किताब में पढ़ते हो? हाँ, हल हल अंता शाबाश। तकराऊ तकरऊ फी किताबिका। फी किताब ही, उसकी, क्या तुम उसकी किताब में पढ़ते हो? हल अंत तकरो फी किताब ही। किताब ही। हाँ जी 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 हाँ, मैं उसकी किताब में पढ़ता हूँ। नाम नाम आना आना अकराओ फी किताब ही। अना अकरऊ फी किताब ही। ठीक है, शाबाश। फी किताब ही। जी जी। क्या तुम अपनी किताब में पढ़ते हो? हल अंता अंता यकरऊ तुम फी किताब। हल अंत हाजिर का तुम। हल अंत हल अंता तकरऊ हाँ, हल फी अंत किताबी फी किताबी का। किताबी का। हल अंत किताबी तकरो का। फी फी किताबी का। किताबी का। हाँ, शाबाश। जी जी हाँ हाँ मैं जी हाँ मैं अपनी किताब हाँ नाम अना अना यकरऊ अना नाम फी अना किताब। अकरा। जी हाँ, नाम अना अकराओ। नाम अना अकरऊ फी किताबिही। जी हाँ, किताबी। अना अकरो। जी हाँ, मैं अपनी, जी हाँ, अना अकरो फी किताबी। हाँ जी, अना अकरऊ फी किताबी। हाँ, अना अकरो फी किताबी। जी अबू अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मतलब ये पूछना था कि पीछे हमने एक निशानी पढ़ी थी, उसका ये उसके तो वो हु इस्तेमाल होगा ना, जी जी तो इसमें हम ही, अभी इधर हम लगा रहे हैं कि ही किताब ही। हाँ, वो ये किताब हो, क्योंकि फी आ गया ना, हर्फ जार आ गया। अगर शुरू अच्छा, में हर हाँ जार हाँ, फिर हर्फ आ गया ना, फी किताब ही। ठीक है ना, जी इस वजह से। जी जी, जैसे फिर इसमें फिर कलमुहु। जेर लगेगा। हाँ, कलमुहु उसका कलम। ठीक है ना, जी लौहु उसकी, हाजा लौहु ये उसकी तख्ती, हाजा कलमुहु ये उसका कलम है। लेकिन जब जी फी आ जाए ना, फिर फी किताब ही आ जाएगा। फी की वजह से जेर आ जाती है। ठीक, ठीक थैंक हो यू गया। जज़ाक। अब्दुल मजीद साहब पढ़े जी आगे अगला सबक। यकतुबु आ गया, वही यकतुबु वो लिखता है। जी अब्दुल मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक्तुबु वो लिखता है। तक्तुबु तुम लिखते हो। हाँ, अक्तुबु मैं मैं लिखता लिखता हूँ। हूँ। उक्तुब उक्तुब अमर है, लिखो। उक्तुब लिखो। हम्म, बा मदद से। जी कुर्रासतुन कॉपी। हम्म, वरकुन कागज। हाँ, आला पर। ठीक है। अब देखे ना, मुजारे आप पढ़ रहे हैं ना, ये मुजारे यकतुबु वो लिखता है, वाहिद मुज़क्कर गायब। तक्तुबु तुम लिखते हो, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अक्तुब मैं लिखता हूँ, वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अक्तुबु बिल कलमी। जी अक्तुबु बिल कलम कलम के साथ लिखो। हाँ, मैं लिखता हूँ। जी अबू अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। जी पढ़े हैं, आगे आप पढ़े, आप तक लिख रहे हैं। हाँ जी, तक तक तो हाँ जी, तक्तुबु बिल कलमी, तुम कलम के साथ लिखते हो। शाबाश। हुआ यक्तुबु बिल कलमी, वो कलम के साथ लिखता है। शाबाश। हुआ यक्तुबु बिल कलम, वो कलम के साथ लिखता है। जी
हुआ यक्तबु बिल कलमी अलल कुरासती, जी वो किताब वो लिखता है कलम के साथ वर्क कॉपी पर। कॉपी पर, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। जी जी मुबशर भाई, ज़ैदुन जी यक्तबु मुबशर बिल जी कलम। मुबशर भाई, मुबशर को पढ़ने दे जी मुबशर। जी हजरत, बस हाँ जी। अच्छा हुआ किताबू ज़ैदुन यक्तुबु बिल कलम, जैदुन यक्तुबु बिल कलमी, जैद जैद तुम लिखते हो अब कलम से, जैद कलम से, हाँ जैद कलम से लिखता है, जैद कलम से लिखता है। जैदुन यक्तुबु अला वर्क़े, अलल वरक़ी, जैद अलल वरक़ी, अलल वरक़ी, अलल वर्क़े, जैद कागज पर लिखता है। जी हाँ जी। सदीकी यक्तुबु बिल कलमी, मेरा दोस्त लिखता है कलम से, कलम से मेरा दोस्त लिखता है। हाँ जी जी सिद्दीकी यक्तुबु अलल वर्क, मेरा दोस्त कागज पर लिखता है। शाबाश। हल तक्तुबु बिल कलमी, क्या तुम लिखते हो कलम से? जी शाबाश। नाम अक्तुबु बिल कलम, हाँ मैं अक्तुबु अलल कुर्रसती, नाम हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। अक्तुबु अल कुर्रासती, मैं कॉपी पर लिखता हूँ, जी ठीक है जी। मैं कॉपी पर लिखता हूँ। जी यक्तुबु बिल कलमी अल कुर्रसती, वो कलम से लिखता है कॉपी पर। जी खुरम साहब, आगे तो खुरम वो साहब अलल जी खुरम साहब, खुरम साहब जी अक्तुबु अलल कुर्रासती, उक्तुब है, उक्तुब या अक्तुबु है, देखें अक्तुबु अलल कुर्रासती, उक्तुब अल कुर्रासती, नीचे वाला जी ठीक है। उक्तुब अलल कुर्रासती, कॉपी पे लिखो। जी अक्तुबु अलल कुर्रासती, मैं कॉपी पर लिखता हूँ। ठीक हो गया। व यक्तुबु अलल कुर्रासती, वो कॉपी पर लिखता है। हल तक्तुबु बिल कलमी अलल कुर्रासती, क्या तुम कलम के साथ कॉपी पर लिखते हो? नाम अक्तुबु बिल कलमी अलल कुर्रासती, जी हाँ मैं कलम के साथ कॉपी पर लिखता हूँ। जी शाबाश जी। आगे है तमरीन, जी कैसे करेंगे तमरीन को? जी तमरीन, अक्तुबु बिल कलम, अक्तुबु बिल कलम, ठीक है मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक जी है। आतिफुल, अक्तुबु बिल, हाँ आतिफुल यक्तुबु बिल कलमी अल कुर्रासती, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, आगे अरबी लिखी हुई है, अक्तुबु बिल कलम अल वरक़ी, ठीक है जी, हो गया। हाँ और कोई साथी जो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़े, जिसने अभी तक, ठीक है ना, नहीं पढ़ा वो पढ़े जी। कोई ज़बान खामोश न रहे, कोई दूसरी ज़बान मिल चाहिए हमें यहाँ, जी बोलें, ठीक है शर्माए नहीं। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, जो पीछे रह गया है वो, जी कोई है मर्द मोमन? मियाँ साहब देख लें। जी 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 सुनो, ये नंबर 4 है ना जी। जी क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ता है? हाँ अब यहाँ से पढ़ेंगे, अक्तुबु, यहाँ से अक्तुबु मैं लिखता हूँ बिल कलम, कलम से अल कुर्रासत कॉपी पर, यहाँ से एक मिनट देना जी, एक मिनट। अच्छा जी बढ़िया से, ठीक है। अक्तुबु बिल कलम, मैं कलम से लिखता हूँ। अक्तुबु बिल कलम अलल वरक़े, मैं कलम के साथ पेपर पर लिखता हूँ, कागज पर लिखता हूँ। अक्तुबु बिल कलम अल कुरासता, मैं कॉपी पर लिखता हूँ कलम के साथ। अल हल कुर्रासती, जबर अल अल कुर्रासती, हाँ जी ठीक है। जी जी। हल क्या अक्तुबु मैं लिखता हूँ बिल कलम के साथ। हाँ क्या मैं कलम के साथ लिखता हूँ, हल सवालिया निशानत है जी जी। हल तक्तुबु बिल कलमी, क्या तुम कलम के साथ लिखते हो? ठीक
जी हल यक्तुबु बिल कलमी अलल कुरासती, क्या तुम लिखते हो यक कलम के वो साथ? क्या वो यक तो गायब का, क्या वो कलम के साथ कापी पर लिखता है? यक तो जी जी। जी हल क्या तक्तुबु क्या हाँ जी तुम तक्तुबु क्या तुम लिखते हो बिल कलम कलम के हाँ सॉरी अल वारा के अलल वारकी वरक के ऊपर। कागज पर जी। हल ठीक हो गया। हल सदीकु हल सदीक सदीकु का हाँ सदीकु का यक्तुब, ठीक है। क्या तुम्हारा दोस्त लिखता है? शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी हल सदीकी यक्तुब, हम्म, क्या मेरा दोस्त हाँ लिखता है? वेरी गुड। हाँ क्या मेरा दोस्त लिखता है जी। जी। हल सदीकु हूँ यक्तुब, क्या उसका दोस्त लिखता है? शाबाश, क्या उसका दोस्त लिखता है जी। हल क्या जायदुन यक्तुब, क्या जायद लिखता है? वेरी गुड मियाँ साहब, आप वैसे ही चुप थे, आप तो माशाल्लाह छुपे रुस्तम निकले। नहीं, अगर वो थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना पढ़ने के लिए जी, फिर हाँ इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको देखना है, सबक को देखेंगे ना, ये वाला सबक कैसा है, कैसे इन्होंने हुआ यक्तु बिल कलम है, इसको 2-3 मरतबा पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे तो खुद ये उर्दू वाला अरबी हो जाएगा। ठीक है। मैंने असल में ना, मैं किताबों से पढ़ने का यूज टू हूँ। इस तरह पढ़ना जो है ना, मुझे वो अजीब सा लगता है। तो हाँ आज मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जब क्लास खत्म होगी ना, जी तो दावत इस्लामी के मरकज में जा रहा हूँ, वहाँ अगर मिल गई किताब तो जी, चले इंशाल्लाह ये मिल वो जाएगी आपको। जितनी भी ठीक किताबें लेंगे ठीक इंशाल्लाह। ठीक है। तो कल दोस्तों ने उर्दू से अरबी लिख के भेजनी है, ठीक है जी। तो आप इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, आप सारे इसमें हिस्सा डालें, कोई इसमें शर्माए नहीं, ठीक है जी। हम मिल बैठ के सब आपस में पढ़ने वाले हैं, ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी जी भाई, कोई ठीक हो गया जी। खुर्रम साहब मैंने तो यहाँ से पता की थी, ये दावत इस्लामी का जो बड़ा मरकज है ना, जी वहां से तो ये नहीं मिली इंशा अरबी, और दूसरी भी नहीं मिली सर्फ वाली, तो उन्होंने कोई और दे दी, वो और है, वो मुख्तलिफ है इससे। इंशाल्लाह अरबिया हमारे एक और शागिर्द हैं यूके में, उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, चले यहाँ से करते हैं फिर, ऑनलाइन कराची से शायद भी। नहीं वही यूके से मंगवाई थी अच्छा, यूके से मंगवाई है, जी। ठीक है। ये बता रहे थे कि जी ये छप नहीं रही, बड़े अरसा हो गया। जी फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हजरत मैंने मंगवाई थी इधर मकतबतुल मदीना ना, यूके, उनकी वेबसाइट पे जाए ना, हाँ तो इंशाअल्लाह अरबिया, खुलासतुन नहव, जी सर्फ, बहाई, ये सब मिल जाएंगे उधर से। तो वो 1-2 पाउंड किया बस इंशाअल्लाह अरबिया, तो 2-3 दिन में पहुंच जाती है किस तरह, दोबारा इनको बताएं जरा दोस्तों को। जी। ये मकतबतुल मदीना यूके आप गूगल में डालें ना, जी जी गूगल में हाँ मकतबतुल मदीना यूके, तो उधर से इंशाअल्लाह ना आपको ये इंशाअल्लाह अरबिया, सर्फ, बहाई और खुलासतुन नहव जो है, ये हार्ड कॉपी इसकी मिल जाएगी वहां से। तो तो ये सस्ती इनका सस्ती ऑफिस, थी यहाँ, 2-2। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बर्मिंघम में ऑफिस है इनका, सेंटर है या लंदन में? नहीं, अब उसका तो मेरे ख्याल बर्मिंघम में है शायद, और हाँ, तो वैसे पोस्ट में आ जज़ाकल्लाह जाएगी खैर, ना आपको, सस्ती सी पोस्टेज है, जज़ाकल्लाह उसमें आ जाएगी पोस्ट में। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया। जी ठीक चलिए है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, खाने में ऐब न निकालना और उसकी तारीफ करना मुस्तहब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। ख्वाहिश होती तो तनावल फरमाते और नापसंद करते तो छोड़ देते, तो उसमें ऐब नहीं निकालना चाहिए खाने में है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले खाना से सालन तलब फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास सिरका है, इसके सिवा कुछ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने मंगवाया, फिर तनावल फरमाने लगे और फरमाते जाते, सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन है। किसी ने खाया है सिरका? जी सिरका खाया किसी ने? बुरहान भाई सिरका खाया है? मैं सिरका पीता रहा हूँ, सेहत के लिए ठीक नहीं। अच्छा सर सिरका सालन के तौर पर नहीं खाया, वैसे खाया है। वैसे खाया है। अच्छा सिरका ये पता किससे बनता है? ये सेब वगैरह से भी बनता है। अच्छा मेरे ख्याल खट्टा सा हाँ होता है थोड़ा सा ना। हाँ जी, खट्टा सा होता है आमतौर पर, गन्ने का क्योंकि जूस होता है सर, हजरत उससे बनता है ज्यादातर तो। गन्ने के जूस से।
نہیں، یہ مختلف جی چیزوں سے سر بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سرکہ گھر میں رکھنا بڑی اچھی برکت ہوگی اس سے۔ روزہ دار کے سامنے کھانا موجود ہو اور روزہ توڑنا چاہتا ہو تو کیا کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک عورت کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے۔ اگر روزہ دار ہو تو دعائے برکت دے، اور غیر روزہ دار ہو تو کھانا کھا لے۔ ٹھیک ہے، دعوت کو نہ لوٹائے۔ جس آدمی کو دعوت دی جائے پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو جائے غیر دعوتی۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، تو آپ علیہ السلام چلے تو 5ویں آدمی بھی جناب ساتھ چلے۔ 5 فرد تھے ہم، تو ایک شخص پیچھے او ہو لیا۔ جب دروازے پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ شخص ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اجازت دو ورنہ واپس لوٹ جائے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اسے اجازت دی۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ جتنے لوگوں کو دعوت ملے اتنے جانے چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ 2 کو ملی 4 چلے جائیں، چل بھائی تو بھی چل، گاڑی یار گاڑی تو جا رہی ہے نا، 2 کیا 4 چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ جتنوں کو بلایا جائے اتنے جائیں۔ اگر زیادہ گئے تو جا کے ان سے کہیں بھئی ہم آ رہے تھے تو یہ بھائی ساتھ ہیں، چونکہ اس نے کھانا جو بنایا اپنے حساب سے بنایا ہوگا نا۔ 2 میں اضافی لے گیا، 2 آپ اضافی لے گئے، 2 دوسرا اضافی لے کے گیا، 15-20 بندے اضافی ہو گئے، تو اس کے لیے تو مسئلہ بن گیا۔ اور اگر ہوٹل میں ہے تو پر ہیڈ آپ کو پتہ ہے اس کا اچھا خرچہ پڑتا ہے، پھر کرسی پر بیٹھنا اس کا الگ سارا کچھ ہے وہ۔ تو یہ اسلامی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں کو ہمیں بلایا اتنے لوگ ہم جائیں۔ ٹھیک ہے، پورا خاندانی نہ نکل پڑے۔ سامنے سے کھانا اور کھانے کے آداب نہ جانتا ہو اسے واضح و نصیحت کرنا ادب سکھانا۔ تو کھانے کے آداب سیکھنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بہت بری بات ہے کہ آدمی کو کھانے کے بارے میں عیب لگایا جائے کہ بڑا کھاتا ہے، تمیز نہیں ہے اس کو، کھانے کا بڑا مطلب، ٹھیک ہے نا، اس طرح چیزیں۔ آپ گھر میں خوب کھائیں پکائیں، ٹھیک ہے نا، تو باہر احتیاط کریں کہ بغیر دعوت کے نہ جائیں، دعوت ملے تو جائیں، ساتھ اوروں کو مطلب بھیڑ نہ لے کے جائیں۔ بڑے آداب ہیں جو یہ دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا اور ابھی بچہ تھا، میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یا آپ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، مطلب غرور میں آ کے میں طاقت نہیں رکھتا دائیں ہاتھ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تجھے طاقت نہیں ہو، اللہ کرے تجھے طاقت نہ ہی ہو، بس تیرا ہاتھ ہی نہ اٹھے۔ اس کو تکبر نے روکا تھا، تکبر کی وجہ سے، چنانچہ وہ اپنا ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا، اٹھا ہی نہ سکا۔ فائدہ، فا سے فائدہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقبول محبوب بندے اپنی مبارک زبان سے جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کر رہی، یہ کہنا کہ ان لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جہالت اور بے دینی ہے۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے چاہنے سے انبیاء و اولیاء نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہیں بتوں پر قیاس کرنا قرآن و سنت سے ناواقفیت اور بڑا ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ جب اجتماعی کھانا ہو تو پھر دوستوں کی اجازت کے بغیر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت جبلہ بن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو ہمیں ایک ایک کھجور کھانے کو دی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزر رہے ہوتے اور ہم کھجوریں کھا رہے ہوتے، آپ فرماتے 2 ملا کر نہ کھاؤ، قحط سالی ہے نا تو برابر برابر کھاؤ، یعنی کہ سارے لپیں بھر کے کھاؤ بھئی اگلے بھوکا رہ جائے، 2 ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کھجوریں ملانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز 2 ملا کے نہ کھاؤ۔ ایک اور چیز، جب آپ نے مکس کھانا ہے نا، جب آپ نے مطلب آپس میں 100 ملا کے کھانا کھایا ہے تو پھر آپ نے اس انداز سے کھانا ہے کہ جتنا سارے کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک زیادہ ہی بار کھائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسرے نے آدھا ہی نہیں کھایا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوگا
अगर मालूम है तो ये रिवाइज हो रही हैं कि हम किसी का हक न खाएं। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, जी प्रोफेसर साहब कुछ का जी बुरहान भाई। अच्छा मुफ्ती साहब बस 1 मिनट लूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जी जी हम एयरपोर्ट पे खड़े थे लाइन में, जी तकरीबन 25 के करीब लोग थे। पीछे से एक आदमी आया और उसने 25वें बंदे से पूछा कि भाई मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके आगे आ जाऊं। फिर उसने 24वें, यानी वो पीछे से शुरू हुआ, अच्छा फिर 24वें बंदे से पूछा, फिर 23वें से, हत्ता के फिर वो पहले बंदे से पूछ के उसके आगे जाके खड़ा हुआ। क्या बात है। यानी अगर वैसे आम तौर पे बताता हूँ, जो मेरा तो मुशाहिदा ये है कि हम होते तो ये करते कि डायरेक्टली सबसे पहले वाले से इजाजत लेते बाकी जाए और भाड़ बस। में। हाँ, ठीक है तो उस बंदे ने ये जद्दा एयरपोर्ट पे 25 बंदों से ऐसे इजाजत लेके फिर सबसे आगे आके खड़ा हुआ। बहुत बड़ी एहतियात की, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे ख्याल में चाइना वाले लोगों की थी, तो एक वो लाइन में खड़े हुए थे, शायद कोई डॉक्टर की लाइन थी, तो पीछे से एक फीमेल आ गई, बच्चा हाथ में था। ठीक है जी, तो आगे बुजुर्ग खड़े थे मियाँ साहब की उम्र के, तो बुजुर्गों ने कहा जी आप यहाँ बेटा खड़े हो जाओ, तो वो बुजुर्ग सबसे पीछे चले गए, और यानी पहला ही नंबर उन बुजुर्गों का था जी, बड़ी उम्र के थे। तो उस फीमेल को वहाँ खड़ा किया कि उसके हाथ में बच्चा है और तकलीफ होगी, तो वो ये एंड पे खड़े हो गए। जो उस बुजुर्ग के पीछे थे वो सारे पीछे होते गए फिर ऐसे घूम आए, बुजुर्ग फिर पहले नंबर पे आ गए उस फीमेल के पीछे। तो ये अखलाकी तरीक़ेकार होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो टिकटॉक वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे मजाक अलड़ तलड़ इधर उधर, जो बाहर के टिकटॉक हमने देखे ना, जो लोग बनाते हैं जापानी वगैरह, वो उसमें एक सबक होता है, एक दर्स होता है। इस तरह अगर बनाना है तो इस तरह बनाया जाए। मसलन एक टिकटॉक मैंने देखी, एक वीडियो, एक फीमेल अपने बच्चे को लेके जा रही है, तो आगे पानी आ गया, ठीक है जी, वो तो मोटरसाइकिल पे, तो पीछे से गाड़ी आती है, तो वो समझती है कि अब गाड़ी ने चले जाना है बड़ी तेज़ी से, तो वो अपने आप को यूँ बचाती है कि कहीं मेरे ऊपर पानी, मतलब बच्चे को बचाती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी वर्दी जो है ना वो गीली ना हो जाए। तो वो बिल्कुल वो ब्रेक लगा देता है, पिछला बंदा गाड़ी वाला बिल्कुल ही ब्रेक लगा देता है, ताकि ये जो है माँ और बच्चा पानी से आगे गुजर जाए। और इस चीज़ को उन्होंने फिल्माया कि इस तरह हम दूसरों का ख्याल करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस्लाम में तो बहुत आला रिवायात हैं, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया है, और जो है वो हमारे यहाँ ये इस चीज़ की कमी है। तो हम ये सीख रहे हैं कि हमें इस पर अमल करना चाहिए। जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, मिल के खाना खाते हैं, ये भी उसी में चीज़ है कि आप जब मिलकर खाना खाएं तो अपने एक अंदाज से खाना खाएं। और ये ज़ाहिर है बहुत सारी अहम चीज़ें हैं, और इसी को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी जी प्रोफेसर साहब। जी सर, इसमें आपकी इस बात से मुझे एक इकबाल का एक